हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं PYQs जो 2017 में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं और उनके बेसिस पे क्या क्वेश्चन और फॉर्म हो सकते हैं, न्यू क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकते हैं, क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड this would be your first question for today for this session. And before starting the session, I would like to tell that please like, share and subscribe my channel. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है एंड पीपीटी आपको अच्छी लगती है, आपको कहीं भी कोई कमी अगर नजर आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल वर्क ऑन दैट। बट अगर आपको मेरा चैनल, मेरी टीचिंग स्टाइल, पीपीटी, एवरीथिंग इज फाइन, you find everything is fine, then please like, share and subscribe my channel, right? So let's move to the question. So here the first question would be, who among the following are known for study of work arrangements to eliminate wasteful hand and body motions? So here are the options. Option number 1, Henry Gant and C.I. Bernard. Option number 2, Frank and Lillian Gilbreth. Option number 3, Elton Mayo and H. Emerson. And option number 4, F.W. Taylor and Henry Gant. Right? So आपके सामने है question and उनके options भी दिए गए हैं. So I'm giving you 15 seconds for this question. Please read it thoroughly and clearly and try to find the answer, right? So I'm giving you 15 seconds. Please go ahead. So here the first answer for this question would be option number 2. Frank and Lillian Gilbreth is known for the study of work arrangements to eliminate wasteful hand and body motion, right? So wasteful hand and body body movement and body motion की को eliminate करने की बात कौन करता है? That is Frank and Lillian Gilbreth, right? So here the next option for this next question for today, the question is, which of the following represents the rights inherent in a managerial position to give orders and expect them to be obeyed, right? So आपको आपके सामने options हैं. Option number 1, power. Option number 2, authority. Option number 3, influence. And option number 4, responsibility. Power, authority, influence and responsibilities are the options. So I'm giving you 15 seconds for this question. Please go ahead. So here the correct answer would be answer number 2, authority, right? So correct answer होगा authority. So let's move to next question. Option number 3 for this session, match the following. आपके सामने list 1 and list 2 दिया गया है, जिसमें से आपको A, B, C, D को 1, 2, 3, 4 से मैच करना है. So let's study the question. Robert Owen. Option number B, Hugo Munsterberg. Option number C, Mary Munsterberg. And option number D, NNP, right? And in front of the A, B, C, D, one is organizations based on group ethics rather than individualism. Option number 2, social norms and standard of group. Option number 3, employers treat their match. And option number 4, scientific study of human behavior to identify general patterns and individual differences. So आपको यहाँ पे options दिए गए हैं, आपके सामने हैं, आपको मैच करना है किसने कौन सी थ्योरी दी थी, आपको ये मैच करना है, right? So I'm giving you 15 seconds. Please try to solve the question. If you're not able to do so, I am here. I'll tell you the answer.
आपके सामने कोड्स हैं ABCD 1 2 3 4। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो सकता है, राइट। सो अगर आपको कोई इनमें से कोई एक, जैसे रॉबर्ट ओवन दिए हैं, यहाँ पर ह्यूगो मुंस्टरबर्ग है, मेरी मुंस्टरबर्ग है एंड NNP है। सो इनमें से आप अगर किसी एक या दो के भी अगर आपकी थ्योरी आपको पता होगी तो आप उनको मैच कर सकते हैं थ्रू द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कि इनका ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इस थॉट प्रोसेस से। सो यहाँ पर रॉबर्ट ओवन ने क्या थ्योरी दी थी, दैट इज एम्प्लॉयर्स ट्रीट देयर मैच, right? So this would be the correct option for this Robert Owen, and for option number B, Hugo Munsterberg, that is option number 4. Scientific study of human behavior to identify general patterns and individual differences. So इस तरह से आप मैच करेंगे। अब देखेंगे अगर आपको इनमें से एक दो भी आता है तो पहले आप एक को मैच करके देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ पे क्या दिया हुआ है। सपोज अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए का 3 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए का 3 किस में दिया हुआ है, तो हम जाएंगे ऑप्शंस के थ्रू और देखेंगे कि ए का 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक मैच आपको पता होता है और सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, राइट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 2 कम से कम पता होने चाहिए क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, राइट। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए का 3 किसी में नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसी में है। तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको जितना आप फास्ट रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो थोड़ा लेंदी होते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन ले लो तो उनमें आपको टाइम लगता है, तो उन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा टाइम आपको सेव करके चलना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन आपने कभी देखा भी नहीं हो या फिर आपने पढ़ा भी ना हो या फिर पढ़ा भी है तो आपको बिल्कुल याद ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए का 3 है एंड बी का 4 है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए से ही आपको आंसर मिल गया। कभी कभी 2 ऑप्शंस की जरूरत होती है क्योंकि मोस्ट सिमिलर ऑप्शंस दे देते हैं एक या 2 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी शो यू द क्वेश्चन अगेन। रॉबर्ट ओवन हो जाएंगे, एम्प्लॉयर्स ट्रीट देयर मैच। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो मुंस्टरबर्ग, scientific study of human behavior to identify general patterns and individual differences. Option number 3 C, Mary Munsterberg, उनका दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर 1, राइट। सो उनका मेरी मुंस्टरबर्ग का हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन ग्रुप एथिक्स रादर देन इंडिविजुअलिज्म, एंड NNP का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोशल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप। सो आपके सामने रहा ये कोड, उसका रहा आंसर, तो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज which of the following has specialists from different departments working on one or more projects that are led by a project manager. So यहाँ पे आपके सामने रहे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 functional organization, ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस फंक्शनल टीम, ऑप्शन नंबर 3 मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन नंबर 4 प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। So here question is in front of you. You'll have to read the question clearly and try to find the answer. I'm here. I'll wait for this. I'll give you 15 seconds for this question. So here the correct answer for this question is option number 3, matrix organization. Matrix organization would be the correct option for this question. Which of the following has a specialist from different departments working on one or more projects? जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, that are led by a project manager, राइट। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलजुल करके एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट या आप कीवर्ड से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, जहाँ पे प्रोजेक्ट की बात आ जाएगा वहां पर आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देंगे, राइट।
सो कभी भी एग्जाम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे आपको ये दे दिया, इतना इतना दे दिया, इतना समझ में आ गया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट है एंड दे आर वर्किंग ऑन मोर देन वन प्रोजेक्ट, तो जहाँ पे प्रोजेक्ट वर्ड आ जाएगा, आप ये कीवर्ड से सही आंसर मार्क कर सकते हैं, दैट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. Let's move to next question. Which one of the following is related to clan control? So you will have to find the answer. The options are: option number 1, relies on administrative rules and regulations. Option number 2, employees' behavior are regulated by the shared values, norms, traditions, rituals, and belief of the organization. Option number 3, emphasizes organization authority. And option number 4, depends on standardization activities. So आपके सामने रहे ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है which is related to clan control, right? So here the correct answer for this question is option number 2. Employees' behavior are regulated by the shared values, norms, traditions, rituals, and belief of the organization. So this is the definition of clan control, right? So let's move to next question. The question is, which one of the following acts deals with the issue of complaints? Option number 1, Factories Act 1948. Option number 2, Payment of Wage Act 1948, and Employees Compensation Act option 1923, option number 3, and option number 4, Industrial Employment Standing Orders Act 1946. So which will be the correct answer for this question? Please read the question carefully and try to find the answer. So the correct answer for this question would be option number 4, Industrial Employment Standing Orders Act 1946 would be the correct option for this question. Let's move to next question. Job description implies. आपको job description में क्या क्या qualities होती हैं, क्या उसके features होते हैं, आपको बताना है. So options are: option number 1, identification of the qualities required in the job holder. Option number 2, performance of job in a methodical way. And option number 3, laying down systematically the duties and responsibilities of the job. And option number 4, determination of the performance standards of the job. So here are the options. I'm giving you 15 seconds for this question. Please go ahead. कौन सी दवाई खिलानी है मुझे? Lasix. बस. So here the correct answer for this question would be option number 3, laying down systematically the duties and responsibilities of the job. तो जॉब डिस्क्रिप्शन की जहाँ पे बात होती है वहां पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है. अगर आप जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तब वहां पे स्किल्स की बात आ जाएगी, राइट. सो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको पूछते हैं कि विच आर द फीचर्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट. क्योंकि आपके ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर फाइंड करना है. सो यू गॉट द आंसर easily that the description of the job description implies laying down systematically the duties and responsibilities of the job. But कभी कभी क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होता है वो मैच वाला दे दिया जाता है.
मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। फिर जो वो ऑप्शंस होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किसमें किसको मैच करूं, क्योंकि स्किल्स का जो एक फंडा है कि स्किल्स कहाँ पे बात की जाती है, जॉब स्पेसिफिकेशन की जहाँ पे बात होती है वहां पे स्किल्स की बात होती है। कभी कभी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी आपको स्किल्स का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको उसको एलिमिनेट करना है, राइट, कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में सिर्फ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है, ना कि स्किल्स की बात होती है। स्किल्स की बात वहां पे होगी जहां पे जॉब स्पेसिफिकेशन की बात होगी, राइट। सो कभी कभी क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप you'll have to be careful about the question formation, right? So here the correct option for this question is option number 3. Let's move to the next question. The human resource planning is a, options are option number 1 a positive process, option number 2 negative process, option number 3 reactive process, and option number 4 proactive process. So here are the options, please find the correct answer. So I guess you might have got the answer. So here the correct answer for this question is option number 4 proactive process. Obviously प्लानिंग की जहां पे बात होगी वहां पे आपको प्रोएक्टिव होना होगा, राइट। एक्टिव तो ठीक है लेकिन आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आप प्री प्लानिंग कर रहे हैं, आप कोई भी चीज फ्यूचर में जिसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिसको अंजाम देने वाले हैं फ्यूचर में, उसकी प्लानिंग अब आज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यू विल हैव टू बी प्रोएक्टिव इन नेचर। सो that is why this is called proactive in nature, that is the proactive process. Human resource planning is a proactive process. So option number 4 would be the correct answer for this question, right? So आज के इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे से जो भी क्वेश्चंस लेके आने वाली वो दिखाऊंगी, एंड ऑब्वियसली बात है आपको उस पर एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए एंड जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल, मेरी पीपीटी स्टाइल सब कुछ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कोड 55 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ के लिए, वो बेनिफिट उठा पाए इन वीडियो से, इन एक्सप्लेनेशन से, इन थ्योरी से। क्योंकि इससे पहले के सेशन में मैंने थ्योरी पार्ट भी कराया है। यूनिट 1 से मैंने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की थ्योरी कराई है, एंड ऑप्शन यूनिट नंबर 2 से मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पार्ट है उनमें से जो थ्योरी पार्ट है वो भी कराया है। वो थ्योरीज जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।